Assalamualaikum everyone. Welcome to 8th class online session 2020-2021. First of all, many congratulations to you all. In 8th class, you have just promoted. And secondly, wishing you the best of luck to you all for this session. Here is the course book for the 8th class. This is the computer course book, Write by 3, 4th edition. We have 5 chapters in our midterm syllabus. The first one is more on number system, working on word, problem solving, introduction to programming, programming to GW Basic. So as it is your first video lesson of computer subject, today's topic we will learn is more on number system. So kindly do grab your computer books and notebooks for your notes. As you know, we have different number system in our computers. So here we have a table with the types of number system in it. As you can see the different headings on your screen, number system with their bases and used digits, it means कि कितने digits जो हैं वो different number systems में include किए जाते हैं. The first number system is binary number system with base 2. इसकी base 2 क्यों है? Because it contains 2 digits in it, 0 and 1. Second number system is octave system with base 8 and digit contains are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The third number system is decimal system, base 10 starting from 0 till 9 digits in it. The last one is hexadecimal number system with base 16 starting from 0 till 9 और उसके बाद A as 10, B as 11, C as 12, D as 13, E as 14 and F as 15. Alright? It means कि जहाँ पर 10 लिखा होगा hexadecimal number system में, we will suppose as A, और अगर A लिखा होगा तो we will let as 10. So जैसे ही हम इस नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे इसको डिटेल डिस्कस करेंगे. Moving on. Here is the today's topic which is binary numbers. So 7th class में आप बाइनरी कंप्यूटिंग का एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ के आए हैं जिसमें डिटेल डिस्कशन की है, आपकी टीचर ने भी की होगी. बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होते हैं, 0 and 1. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 0 and 1? इसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं. ऑन योर स्क्रीन एट द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन देयर इज़ अ बल्ब विद 0 digit on it. A binary 0 means off. No current is flowing through the light bulb, so it is off. जब कोई भी करंट पास थ्रू नहीं करेगी, इसमें से फ़्लो नहीं करेगी लाइट बल्ब में से, इट मीन्स कि ये ऑफ है, देयर इज़ नो सिग्नल इन इट, सो इट इज़ 0 एज बाइनरी. और इसके साथ ही दूसरा है अ ग्लोइंग बल्ब विद 1. अ बाइनरी 1 मीन्स ऑन. Here current flows through the light bulb to turn it on. It means there are some signals in it, the light flowing in it, so it is 1. At the right side of your computer here you can see the different digits in it, क्योंकि binary में हमारे पास 2 switches होंगे, 2 digits होंगे जिनको हम लोग utilize करेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि we have 2 switches on it, switch A and switch B, and then you have bulb. ये आपको एक सिंपल सा मैंने रिकैप करवा दिया है फ्रॉम योर 7th क्लास बाइनरी कंप्यूटिंग चैप्टर से, ताकि आपके माइंड में वो रिफ़्रेश हो जाएं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. हियर आर द रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन. हमने बाइनरी एडिशन के रूल्स भी पढ़े थे 7th क्लास में, तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं. when 0 plus 1 it will be 1. जैसे कि अभी हमने स्विचेस में भी देखा है कि बल्ब ग्लो करता है, ये सेम वही इसके सारे के सारे
हमारे पॉसिबल जो ऑपरेशंस हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 0 = 0, 1 + 1 = 0, कैरी 1, राइट। हम 1 + 1 जब लिखेंगे तो आंसर में 0 लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंड व्हेन यू हैव 3 ones इन अ रो और इन अ कॉलम, 1 + 1 + 1 जो कि कैरी भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, विल राइट डाउन 1 एज आंसर एंड 1 एज कैरी फॉरवर्ड, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इसको ईज़िली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। एग्जाम्पल्स फॉर बाइनरी एडिशन जो आप लोग ऑलरेडी 7th क्लास में कर भी चुके हैं। रूल्स लिखे हैं टॉप पे। ओके, हियर यू कैन सी द क्वेश्चन 1 1 0 1 and then you have 0 1 1 0 और इन टू वैल्यूज़ को, बाइनरी नंबर्स को हम ऐड करने वाले हैं। सो here you can see the rules of binary addition। तो इसको हम लोग माइंड में रिकैप करते जाएंगे और साथ में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। 1 + 0 = 1। Here you can see 1 + 0 = 1, right? 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, right? Then you have 1 + 1 = 0 and 1 will be carry forward to the next one because ये देखें ये रूल्स में लिखा हुआ है 1 + 1 = 0 with 1 carry for the next column। ये आपकी बुक में भी रूल्स लिखे हुए हैं। You can also check out your book as well। Then you have 1 with 0 and 1 carry। As you know यहाँ से फॉरवर्ड किया गया था कैरी। यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। यहाँ से हमारा एक कैरी गया था, ठीक है। तो ये हमारा कैरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। 1 + 1 and then 0, 1 + 1 0 with 1 carry, so 1 + 1 0 with 1 carry to next। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कैरी प्लेस कर देंगे, राइट। ये हमारा 1 कैरी का 1 डिजिट नीचे आ गया, ठीक है। तो ये एज़ इट इज़ आ गए। हमारे 2 कैरीज थे, ये एज़ इट इज़ आ गया और ये हमने यहाँ पर ऐड किया था। होपफुली आपको ये इजीली रिकैप हो चुका है, रिवाइज़ करवा दिया गया है और ये आपको आपकी क्लास टीचर ने, कंप्यूटर सब्जेक्ट टीचर ने बहुत अच्छी तरह से 7th क्लास में एक्सप्लेन भी किया था। ऑल राइट, then moving on to the next example, which is 1 + 1 will be 0 and 1 carry to the next column। 1 + 1 because 0 जो है यहाँ पर as it is 0 ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 1 + 1 0 and then 1 carry to the next column as it is the rule of the binary addition। Here you can see the rule of binary addition जो हम कर रहे हैं, ठीक है। When you have 2 ones in a row or a column, it will be 0 and 1 carry to the next, and then you have 3 ones in a column, तो आंसर 1 आएगा और 1 कैरी करेंगे। ये भी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, as you can see on your computer screen, I am showing with the highlighter, the 1 with answer and 1 carry to the next। Here we have again the 3 ones in a column, so we will write 1 as answer and 1 the carry 1, ठीक है। तो कैरी का जो 1 है वो as it is हमने यहाँ पे लिख दिया। तो मैं यहाँ पर लिख कर आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। 3 ones थे हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास एक और 1 जो था ये as it is यहाँ पर प्लेस कर दिया गया, ठीक है। ये कैरी का था। होपफुली ये आपको क्लियर हो चुका है, ये as it is यहाँ पर आ गया। तो हम उस बाइनरी एडिशन को रिकैप कर चुके हैं जो आप लोग ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ चुके थे। अब उस बाइनरी एडिशन के रूल्स को यूज़ करते हुए हम करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही सिंपल है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन डिस्प्ले किया है, आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 1011 मल्टीप्लाइंग विद 111 बिकॉज़ ये बाइनरी डिजिट्स हैं तो इसको हम 1011 या 111 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है। ये 1011 मल्टीप्लाइंग विद 111 और 111 कह सकते हैं आप। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इनको 2 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। द फर्स्ट वन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड देम। सो here we have the value 1011 and then 111. मल्टीप्लाई करेंगे इसको डिजिट बाय डिजिट। सो here we start 1 टाइम्स सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जैसे हमारी स्टैंडर्ड मेथड यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में की जाती है। सिंपल डेसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। सिंपली जो हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके आंसर आ जाते हैं। आपको पता है 1 को किसी भी डिजिट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिजिट एज इट इज़ आ जाएगा, और जब हम किसी भी डिजिट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में ज़ीरो आ जाता है। सिंपल जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। 1 टाइम्स 1, 1 टाइम्स 1, 1 0 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर आप ज़ीरो ड्रॉ करते हैं या मल्टीप्लिकेशन का मार्क ड्रॉ करते हैं या इसको स्किप कर दें और मूव करेंगे हम लोग लेफ़्ट साइड को जैसे सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अगेन द सेकंड डिजिट 1 टाइम्स 1, 1 टाइम्स 1, 1 0 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1, राइट। और इसी तरह दोबारा से हम लोग करेंगे द लास्ट वन डिजिट 2 ज़ीरोज़ या 2 मल्टीप्लिकेशन मार्क्स ड्रॉ कर लें या इसको स्किप कर दें। ऑल द मेथड्स आर करेक्ट, राइट। 1 टाइम्स 1, 1 टाइम्स 1, 1 0 टाइम्स 0 एंड 1 टाइम्स 1, राइट। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया है सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। इसको करने के बाद हम करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ मूव। वो क्या है? एडिशन का। ये वही वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख दी हैं और इनको ऐड करेंगे जैसे बाइनरी एडिशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए। सिंगल 1 इन अ कॉलम as it is 1, 1 plus 1 0 with 1 carry to the next, right? So here we have 1, right? 1 plus 1 plus 1, it will be 1 and 1 carry to the next higher column, right? And then 1 plus 1 plus 1, 1 answer and 1 carry to the next higher column. Then 1 plus 1 0 with 1 carry to the next column. Again 1 plus 1 it will be 0 and 1 carry to the next, और ये 1 as it is यहाँ पर आ जाएगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन सिंपली हमने की है जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं, जैसे आप सिंपली मैथ्स में करते हो। और जब उस मल्टीप्लिकेशन को ऐड करने का टाइम आएगा तो हम यूज़ करेंगे बाइनरी एडिशन के रूल्स। Notice the pattern if the partial products, as you can see, multiplying a binary value by 2 can be achieved by shifting the bits to the left and adding zeros to the right. आपने देखा हमने यहाँ पर ज़ीरोज़ को ऐड करते गए थे और शिफ्ट करते गए थे ताकि ये ईज़ीली लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते गए थे ताकि ये ईज़ीली जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसको कर लें। ऑल राइट क्लास, नाउ 1 multiplying with all digits as it is 1 0 1 1, then you have the last one 1 times 1, 1 times 1, 1 0 times 0 and 1 times 1। ऑल राइट, ये हो गई हमारी सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब हमारी बारी है इसको क्या करने की,
ऐड अप करने की, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए हम लोग फॉलो करेंगे बाइनरी एडिशन के रूल्स। वी हैव 1 एज इट इज़, 1 in a column as it is, then you have again a single one as it is. Here you have 3 ones in a column, so the answer will be 1 and 1 carried to the next column. तो next column में यहाँ पर हम 1 ऐड कर देते हैं as carry. All right, 1 plus 1 0 with 1 carry to the next column, and then 1 plus 1 0 1 to the next column, 1 plus 1 0 and then again 1, और ये 1 as it is आ गया. Is that clear about it? Moving to the next one, here you have a question 1 0 0 1 and 1 0 1. 1 1 times 1, 1 0 times 0, 1 1 0 times 0, 1 1 times 1. Shifting to the next one, मल्टीप्लाइंग का मार्क आप ड्रॉ कर सकते हैं, ज़ीरो ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप सिंपली इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते जाएंगे सिंगल डिजिट को, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आ सकता है। ज़ीरो को किसी भी डिजिट के साथ सॉल्व करें तो ज़ीरो ही आता है, ठीक है। तो ये ज़ीरो एज इट इज़ आ गए। 1 1 टाइम्स 1, 1 0 टाइम्स 0, 1 0 0, 1 1 1। एडिशन कर लेते हैं बाइनरी एडिशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। 1 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, अगेन वी हैव सिंगल 1 इन अ कॉलम, एज इट इज़ 1 लिख देंगे, अगेन वी हैव सिंगल 1 1 लिख देंगे, 0 0 टाइम 0, 0 प्लस 0 0 एंड 1 एज इट इज़। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, here we have binary subtraction rules as well. आपने 7th क्लास में बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स भी पढ़े हैं, उनको रिकैप कर लेते हैं। 0 minus 0 will be 0, 1 minus 0 equals to 1, 1 minus 1 equals to 0, and when you have 0 minus 1 you have to borrow. When you have 0 minus 1 it will be 1 as answer with 1 borrowed from the next column. This table is also on your book, you can check it out very well. Here is an example of binary subtraction. Simply हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, 1 1 0 0 1 0 1 माइनस कर देंगे इसमें से 0 1 0 0 1 1, 1 minus 1 0, 0 minus 1 क्या रूल है हमारे पास, 1 answer and 1 borrowed from the right side column. It means we have to borrow it from here, तो it will 0 और यहाँ पर इसके साथ आ गया 1. ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, आपने ज़ीरो को भी एक वैल्यू ही कंसिडर करना है, बिकॉज़ बाइनरी डिजिट में जो ज़ीरो है ज़रूरी नहीं वो निल या एम्प्टी शो करता है, माइट बी पॉसिबल वो किसी और वैल्यू को शो कर रहा हो. सो यू हैव टू सपोज 1 and 0 एज इक्वल इन बाइनरी. सो लेट्स सपोज यू हैव 2 pencils एंड यू हैव टू गिव वन ऑफ योर पेंसिल टू योर फ्रेंड, तो आपके पास एक रह जाएगी. Just like over here we have 2 digits 1 and 0 and will minus 1, so answer will be 1 as it is our rule in binary subtraction. Alright, अब यहाँ पर हमारे पास 0 रह गया था और 0 में से 1 माइनस करने के लिए we will borrow from the next column. यहाँ पर 0 है, so we will moving to the next one. Again we have 0, so we will borrow it from over here. So माइनस करेंगे इसको यहाँ से और ये आ गया यहाँ पर 0. इसको हमने कंबाइन किया यहाँ पर और यहाँ से माइनस किया, तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट रह गया और फिर इसको यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है. और फिर यहाँ से हमने माइनस किया सिंगल डिजिट को यहाँ पे और हमारे पास यहाँ भी सिंगल डिजिट रह गया. ऑलराइट,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट्स थे, इनमें से सिंगल डिजिट माइनस कर दिया 1, यहाँ पर सिंगल डिजिट था हमारे पास, इसमें से 0 माइनस किया, 1 एज इट इज़ आ गया. Then you have a single 1 and you will be minus 0 from 1, so it will be 1 as it is. Then you have 0 and you have to minus 1 over it, so you will carry again from the next one column, it यहाँ पर 0 रह जाएगा और it will be 1 0. So 1 0 में से माइनस करेंगे 1, so it will be 1 again because it is our rule कि आपको जब 0 में से 1 माइनस करना है, आपको क्या करना है, 1 लिखना है आंसर में और 1 बोरो करना है नेक्स्ट कॉलम से. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, बाइनरी डिवीजन. सो क्लास बाइनरी डिवीजन बहुत सिंपल है बिकॉज इसमें 2 मेथड्स हैं. जो भी आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम ज़रा डिवीजन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर है, उसको चेक कर लेते हैं. हियर यू कैन सी दैट द आउटर वैल्यू विच इज़ डिवाइज़र, जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं. द इनर वैल्यू इज़ डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं डिवाइज़र के साथ. और जो ऊपर हमारे पास आंसर आता है उसको कहते हैं कोशिएंट, राइट. और जो रिमेनिंग आएगा वो होगा रिमाइंडर. सो हियर वी हैव द बाइनरी डिवीजन. डिजिट बाय डिजिट मेथड, सिंपली आउटर साइड पे हमारे पास क्या है, डबल 1. इट इज़ नॉट 11, इट इज़ डबल 1 बिकॉज बाइनरी में इसे डबल 1 या 1 1 ही कॉल किया जाता है. सो डिजिट बाय डिजिट सॉल्व करने के लिए 0 भी एक डिजिट है, तो हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे. सिंगल 1 जो है वो डबल 1 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको 0 से डिवाइड करते हुए कंटिन्यू करेंगे. तो किसी भी डिजिट को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है. सो डबल 1 0 टाइम्स 0. माइनस करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग. So 1 minus 0 will be 1 as it is. So सेकेंड स्टेप इसमें मूव करेंगे हम सेकेंड वैल्यू को, सेकेंड डिजिट को, तो 0 ये हमने यहाँ पर मूव कर दिया. ऑल राइट, नाउ इट इज़ 1 0. 1 0 is again smaller than 1 1. So it is again not possible to divide. So we will continue it with 0. So 1 1 0 times 0 again. माइनस करेंगे इसको बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग. सो 1 एज इट इज़, 0 minus 0. And next we have to add the third digit into our third step. Now it's 1 0 0. There are 3 digits in our row, so it is divisible with 1 1. So we will divide it 1 1 with 1 times over here. 1 टाइम करने से as it is 1 1 आ जाएगा. अब हम इसे करेंगे अगेन सब्ट्रैक्ट with the help of बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स. तो 0 में से 1 माइनस नहीं किया जा सकता, तो नेक्स्ट से बोरो किया करेंगे हम. अगेन नेक्स्ट में बोरो करने के लिए कुछ भी नहीं है, 0 है, तो हम लोग नेक्स्ट कॉलम से इसे बोरो करेंगे. इसको मैंने किया कट, यहाँ पर आ गया 0 और फिर यहाँ पर हमने मूव कर दिया. ये हो गए 2 डिजिट्स, जबकि हमें तो यहाँ पे बोरो फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ से भी कट किया, सिंगल डिजिट यहाँ पे रिमेनिंग, और इसको हमने नेक्स्ट डिजिट के साथ 1 प्लेस कर दिया. तो ये आ गया आपके पास 1 0. तो 1 0 में से आपको जैसे कि पता है रूल है हमारा, 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा. यहाँ पर सिंगल 1 था, सो 1 minus 1 equals to 0, और ये ऑलरेडी ही 0 है. So moving to the next one, the last one digit into the fourth and the last step of our question. 0 1 1, it is completely divisible by 1 1. So 1 1 multiplying with 1, so
1 इज़ आंसर, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारे पास 0 आ जाएगा. सो हेयर इज़ द फर्स्ट मेथड, द डिजिट बाय डिजिट बाइनरी डिवीजन मेथड. द नेक्स्ट वन यू हैव इज़ द सिंपल डेसिमल मेथड ऑफ डिवीजन, जो आप मैथ्स में करते हो कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग डिजिट्स ले सकते हो और उसको डिवाइड कर सकते हो. जैसे हमने यहाँ पर 1 को डिवाइड करना है, तो हमने फर्स्ट 3 डिजिट्स जो हैं उनको ले लिया है, सपोज़ कर लिया है, और इसको हम 1 टाइम जब सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ से, तो ये आ गया आपके पास 1 एंड 1. अब इस 100 में से माइनस करेंगे हम 11 को. अगेन ये सेम ये वाला प्रोसेस है, मैं रिपीट कर देती हूँ. 0 में से 1 माइनस करने के लिए हमें बोरो करना पड़ेगा उससे लेफ़्ट साइड कॉलम से, जो कि ऑलरेडी 0 है, तो इसलिए हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट 1 कॉलम में जो कि 1 है. तो यहाँ से इसको कट करेंगे और ये आ गया आपका 0, और यहाँ पर इसके साथ आपने जब कंबाइन किया तो ये हो गया 10. यहाँ से भी हमने इसको कट किया और इसको यहाँ पर लिख देती, ठीक है, 100, और यहाँ पे क्या रह गया था, सिंगल 1. अब इस 10 में से हमने माइनस किया 1, तो 1 आंसर आ गया. 1 - 1 वेल 0. अगर आप ना भी ड्रॉ करें इट्स फाइन, पर अगेन 0 था यहाँ पे, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो 1 जो नेक्स्ट डिजिट है उसको हमने मूव किया प्रोसेसिंग सिस्टम में. It becomes 1 1. It is totally divisible by divisor 1 1. So 1 times 1, 0 0 आंसर आ गया. 0 से हमने डिवाइड किया इसको अगेन with 0 and the answer will 0. So here you have the decimal number division into our binary division number system. 2 मेथड हैं, आपको जो भी इजी लगे आप उसको उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चंस पे. बोथ द मेथड्स आर करेक्ट एंड एक्सेप्टेड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी हैव द एक्टिविटी फॉर आवर लेसन विच इज़ टू रीड योर पेज नंबर 3 till 5 from your textbook, and after that, after reading your book and after listening your lesson, you have to solve your worksheet accurately. Best of luck to you all. Allah Hafiz.